अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक। पेज नंबर आपकी बुक का है 261। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे मैंने आपको रिएक्शन ऑफ अल्कीन स्टार्ट करवाए थे। फर्स्ट रिएक्शन हमने इसका कंप्लीट कर लिया था। सेकंड वन की तरफ आज हम चलेंगे, डैट इज़ हाइड्रो हेलोजिनेशन। इससे पहले हमने सिर्फ और सिर्फ हेलोजिनेशन को स्टडी किया था, ठीक है, उसका पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया था। आज हम सेकंड वन पढ़ेंगे, डैट इज़ हाइड्रो हेलोजिनेशन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह वन बाय वन मैं आपको सारे रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगी। When an alkene react with dry gaseous hydrogen halide at room temperature, the product is called halogen. Halogen से वे है बेटे हेलोजिनो अल्केन। इथीन प्लस HBr ब्रोमो इथेन। Hydrogen halide are among the simplest example of polar substance having permanent dipole that adds to alkenes. All hydrogen halide HBr, HCl, HI, HF give this reaction and add across C double bond C exactly the same way. But the rate of reaction increases from HF to HI. The actual product formed depend upon whether the alkene is symmetrical or unsymmetrical. Number one, addition to symmetrical alkenes. When the alkenes ethene is symmetrical, only one product is theoretically possible. Let us look at the mechanism of addition of HBr to ethene. Mechanism. Nucleophilic pi bond attack the hydrogen in hydrogen halide. Hydrogen bromide give the bromide ion. Ethene is converted to carbocation by adding hydrogen to one of the double bonded carbon. Number two, the bromide ion nucleophile attacks the carbocation to give the addition product. Number two, addition to unsymmetrical alkenes. When the alkene is unsymmetrical, two products are theoretically possible. For example, the addition of HBr to propene can give two products, but experimentally, it has been found that under these conditions, the major product is 2-bromopropane and the minor product is 1-bromopropane. Markovnikov's rule is applicable for addition reactions in alkenes. According to this rule, when a polar reagent adds to an unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent attached to the double bond carbon which bear the lesser number of hydrogen. Next is mechanism. Propene react with HBr in two ways. The mechanism of this reaction involves the following step. The pi electrons of C double bond C attack on partial positive end of HBr. Hydrogen bromide break heterolytically creating bromide ions electrophile and hydrogen is added to double bond carbon with more number of hydrogen containing a 2 carbocation. Number two, the bromide ion attack the secondary carbocation to give the major product. The minor product is formed by the attack on primary carbocation. अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया, मैंने पूरा टॉपिक ही रीड कर लिया कि इसमें कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है या डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजी है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूं, कहीं वो मिस ना हो जाए। देन इसको मैं आपको सारे रिएक्शन वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बेटे करके दिखाऊंगी। हमने पढ़ा यहाँ पे क्या चीज़ हम पढ़े हैं, हम पढ़े हैं आपका थर्ड जो सेकंड यहाँ पे जो रिएक्शन आ रहे हैं अल्कीन्स के, डेट इज़ नोन एज हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है, पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। हाइड्रोहेलोजिनेशन क्या है कि जब कोई भी अल्कीन बेटे ड्राई गैशियस हाइड्रोजन हाइलाइट, हाइड्रोजन का हाइलाइट क्या होता है, कोई भी हाइड्रोजन जब हेलोजेंस के साथ कंबाइन हो, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइट कहते हैं। जब कोई अल्कीन ड्राई गैशियस हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ कंबाइन होता है एट रूम टेम्परेचर, तो जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, हेलोजिनो अल्केन कहेंगे या हेलोजिनो अल्केन कहेंगे। और जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोहेलोजिनेशन का जो प्रोसेस है बेटे ये किस तरह से होगा, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो हैं वो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। वन बाय वन सारे के सारे स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग मेरे साथ साथ इसको अपनी नोटबुक्स में उतारो। आपकी बुक में जो है वो ओवरऑल रिएक्शन लिखा होता है, लेकिन पूरे स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पे मिसिंग होते हैं, इसीलिए आपको यहाँ से जो है वो समझना आना मुश्किल हो जाती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप जो यहाँ पे हुआ होता है वो बताऊँ। हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं अपने सेकंड रिएक्शन, डैट इज़ नोन एज क्या हमने कहा उसको, हाइड्रो
हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है, हेडिंग दे दी हमने, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जब अल्कीन बेटे ड्राई गैशियस हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ रिएक्ट करेगा एट रूम टेम्परेचर, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आएंगे डेट आर नोन एज हेलोजिनो अल्केन, और या उसको जो हेलोजिनो अल्केन होते हैं उनको हम अल्काइल हाइलाइड्स भी कह देते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं। कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट करेगा HBr के साथ। अब देखो गौर करो ये क्या चीज़ है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है ये अल्कीन है। ये कौन सा अल्कीन है, C2H4, यानी कि ये आपके पास क्या है बेटे, दिस इज इथीन। और ये क्या है, ये हमारे पास है हाइड्रोजन हाइलाइड। कौन सा हाइलाइड है, ये है हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। ये रिएक्ट करेगा, दोनों रिएक्ट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, एट रूम टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो कौन सा होना चाहिए आपका, नॉर्मल, यानी कि रूम टेम्परेचर होगा। आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये H यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है, CH3 CH2 और साथ आपके क्या अटैच हो जाएगा, Br अटैच हो जाएगा। ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना दिस इज नोन एज ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे ख़त्म हो गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, तो हमने क्या कह लिया, ये इथेन। इथीन जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, इथेन में। यानी कि इस चीज़ में अगर आप गौर करो ना तो इथीन अल्कीन से अल्केन भी बन सकते हैं, ठीक है। ये वो भी रिएक्शन एक आपको समझ आ गई कि अल्कीन से हम अल्केन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे, बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड। तो ये जो पूरा मैंने प्रोसेस किया बेटे, दिस इज नोन एज हाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। यहाँ पे अब बेसिकली कौन कौन से स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व थे, यहाँ पे क्या हुआ था बेटे, हाइड्रोजन हाइलाइड जो हैं ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, क्या, हाइड्रोजन हाइलाइड्स। हाइड्रोजन हाइलाइड्स जो हैं ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल्स हैं किसकी, पॉलर सब्सटेंस की, किसकी, ये पॉलर सब्सटेंस की सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। और इनके अंदर परमानेंट डाइपोल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अल्कीन्स के साथ क्या हो जाते हैं, एडअप हो जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है, जब भी आप इस प्रोसेस को डिफाइन करेंगे अपने पेपर्स में लिखोगे तो यहाँ पे आपने ये मेंशन करना होता है कि हाइड्रोजन हाइलाइड जो है ये सिंपलेस्ट एग्जांपल हैं किसकी, पोलर सब्सटेंस की, और दे हैव परमानेंट डाइपोल, ठीक है, और ये ऐड होते हैं टू अल्कीन्स। दूसरी पॉइंट यहाँ पे क्या है कि तमाम के तमाम हाइड्रोजन हाइलाइड, तमाम के तमाम हाइड्रोजन हाइलाइड हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास है HBr, HCl, HI, HF, ठीक है। कौन कौन से, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, HCl है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, फिर आपके पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, एंड देन आपके पास क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। ये हमारे पास क्या हो गए, डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन हाइलाइड हैं, यानी कि तमाम के तमाम हाइड्रोजन हाइलाइड इसमें आ जाते हैं। ये इसी तरह का रिएक्शन आपको देंगे। अगर यहाँ पे मैं Br की जगह HCl लगा देती तो यहाँ पे Cl अटैच हो जाना था, यहाँ पे I लगाती तो यहाँ पे I अटैच होना था, F होता तो यहाँ पे F अटैच हो जाना था। यानी कि तमाम के तमाम जो हाइड्रोजन हाइलाइड्स हैं बेटे, इन्होंने यही रिएक्शन जो है वो देना था C डबल बॉन्ड C के साथ, बिल्कुल सेम वे में, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जो है वो ये ऐसा ही रिएक्शन जो है हमें देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपने अभी मैंने रीड आउट की वो क्या थी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटे वो इंक्रीज होता है फ्रॉम HF टू HI, HF से HI की तरफ जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डिपेंड करता है किस पे बेटे, सिमेट्री के ऊपर, कि अल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल्स हैं या अल्कीन जो है वो एसिमेट्रिकल है। इस चीज़ पे जो एक्चुअल प्रोडक्ट जो बनते हैं वो इसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि जो आपका अल्कीन है वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। और यहाँ पे जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, उसको हम किस तरह से राइट करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये आपने यहाँ पे याद रखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो हाइड्रोजन हाइलाइड का है वो ऑर्डर किस तरह का है बेटे, HF, फिर आपके पास आ जाएगा HCl, देन आपके पास क्या आएगा HBr, और इन द एंड आपके पास क्या आ जाएगा HI, ठीक है। ये ऑर्डर है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। ये आप इस यहाँ पे लिख लो, आपकी बुक में ये शायद नहीं दिया गया। ये क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइलोजन्स हाइलाइट, ठीक है।
और यहाँ पे HF है, फिर उसके बाद ACl है, HBr और HI। यानी कि बेटे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से, HF टू HI जो है वो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और जो अगर आप यहाँ पे देखो, सपोज हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे HBr की हमने एग्जांपल ली थी अभी ऊपर। ठीक है, ये भी हमारे पास एक मतलब हाइड्रोजन हाइलाइड है ना, HBr। अगर इसको आप देखो तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव है ये। ठीक है, अगर इसको देखें तो इट इज़ पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, इट पुल्स द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। जबकि अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लोअर होती है देन Br। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो ये ऐसे आपने ये 2 मेन पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं। फिर मैंने आपको बताया अभी कि बेटे जो यहाँ पे जब भी आप अल्कीन्स की हम हाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो इनका रेट ऑफ रिएक्शन है या जो एक्चुअल प्रोडक्ट, ये जिस तरह ये प्रोडक्ट बने, जो एक्चुअल प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं ये डिपेंड करते हैं कि अल्कीन जो हैं वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इसी बेस पे हमने अल्कीन्स के रिएक्शंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक है, एक कैटेगरी कौन सी हमने बना दी, एडिशन रिएक्शन। एडिशन, कोई भी एडिशन जो होगी टू सिमेट्रिकल अल्कीन्स। ठीक है, और एक हम कौन से पढ़ लेंगे जिसमें हम बना देंगे कि एसिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए बना अलग से हम लोग जो है इनके रिएक्शन को स्टडी करेंगे, एसिमेट्रिकल अल्कीन्स, एडिशन टू सिमेट्रिकल अल्कीन्स। इस केस में क्या होगा कि जब अल्कीन, कॉमन एग्जांपल अल्कीन की हम क्या लेते हैं, इथीन लेते हैं सपोज। ठीक है, अभी तक जितने भी बार हम अल्कीन, जब भी अल्कीन में आपको पढ़ा रही हूँ तो जो कॉमन एग्जांपल है वो हम यहाँ पे इथीन ही लेते हैं। तो कोई भी अल्कीन बेटे, जब अल्कीन फॉर एग्जांपल इथीन हमारे पास सिमेट्रिकल हो और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल हो, तो कैसा मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म अभी मैं आपको बताऊंगी। यानी कि अगर हमारे पास अल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल हो तो देन हमारे पास एडिशन का मैकेनिज्म यानी कि हाइड्रोहेलोजिनेशन का मैकेनिज्म किस तरह का होगा बेटे, वो मैं बताऊंगी और कोशिश करेंगे आगे इनको फर्दर हम स्टेप बाय स्टेप करें। यहाँ पे जो पहला स्टेप इन्वॉल्व होगा उसमें क्या चीज़ बनती है बेटे, उसमें फॉर्म होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन। ठीक है, सबसे पहले कार्बोकेशन होगी। ठीक है, कार्बोकेशन में क्या होता है कि जो हम इसी रिएक्शन को आगे लेके फर्दर मूव करेंगे। ये जो मैंने ऊपर रिएक्शन करवाया था ना, जो हमने एल्कीन्स के एग्जांपल की थी, यही रिएक्शन, इसी को हम आगे लेके अब चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक पाई बॉन्ड जो है बेटे, ये हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन हाइलाइट पे ये वाला हाइड्रोजन जो ये हाइड्रोजन हाइलाइट जो है, न्यूक्लियोफिलिक पाई बॉन्ड जो है इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है बेटे वो ब्रोमाइड आयन देंगे, यानी कि Br नेगेटिव। अभी मैंने बताया आपको, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये Br यानी कि ब्रोमाइड आयन देंगे। इथीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोकेशन में, और यहाँ पे इथीन के साथ क्या चीज़ अटैच हो जाएगी, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ। किस तरह से अटैच होगा बेटे, हमने पहले भी ये पूरा कार्बोकेशन का फिनोमेना मैं आपको पढ़ा के आई हूँ। उसी तरह C डबल बॉन्ड C। ठीक है, यहाँ पे हम इथीन लिखेंगे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, इधर भी क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, प्लस Br, फिर आपके पास Br आ गया। ठीक है, रूम टेम्परेचर, ठीक है, आपने याद रखना है रूम टेम्परेचर है ये, और आप ये मैकेनिज्म है। और यहाँ पे आपको पता है कि इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ये इकट्ठा जो है एक ही स्टेप में रिएक्शन नहीं होता, वन बाय वन आप इसको लेके चलेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होना है, यहाँ से क्या होना है, इलेक्ट्रॉन जो है इट डोनेट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा, Br+ को, ठीक है। ये आपने यहाँ पे याद रखना है। हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा, क्या बनेगा, HCC और फिर H, ठीक है। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या चीज़ आके अटैच हो जाएगी, एक Br, यहाँ पे प्लस, और इधर क्या चीज़ आ जाएगी आपके पास, Br- यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ये इंटरमीडिएट होगा रिएक्शन, ठीक है। अब ये इंटरमीडिएट जो है ये फर्दर रिएक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे पहले क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन, ये कार्बोकेशन होगी। अब क्या आ जाएगा, सेकंड जो स्टेप है पूरा मैकेनिज्म में, अब बनेगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, ये बेटे हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, जब हमने कार्बोकेशन का प्रोसेस पढ़ा था तो उसमें भी मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि पहले जो है हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। अब यही इंटरमीडिएट से हम लोग स्टार्ट लेंगे, HCCH, यही चीज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ, H, यहाँ पे क्या था, Br प्रेजेंट था, ये हमारे पास आइंस, यहाँ पे क्या था, प्लस Br-, ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिया। अब फिर रूम टेम्परेचर पे फर्दर ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा और आपके पास क्या बन जाएगा बेटे, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे H, इधर भी H, इधर भी H और इधर भी H, यहाँ पे हमारे पास Br और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। अब गौर करो, मैंने आपको पहले भी बताया कि रिएक्शन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, ठीक है, अगर आपको शायद याद हो गया हो। अब यहाँ पे ये जो चीज़ बनी है, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, दिस इज़ नोन एज 1 2, एक 1 पोजीशन पे, एक 2 पोजीशन पे है, क्या है, डाई, यानी कि दो हैं, क्या चीज़ें हैं, दो, ब्रोमो, और क्या साथ है, इथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, C2H4 है, तो ये क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो इथेन, ये इसका नाम हो गया। यानी कि जो आप, जब हमारे पास सिमेट्रिकल अल्कीन्स होते हैं, जब अल्कीन जो है सिमेट्रिकल होंगे, ओनली वन प्रोडक्ट जो है हमारे पास पॉसिबल होगा। इस पूरे केस में जो मैकेनिज्म था वो सारा का सारा मैंने आपको बताया। अब अगली चीज़ जो हम करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे, अब पहले हमने क्या पढ़ा, एडिशन टू सिमेट्रिकल अल्केन्स, अब हमने क्या करने हैं, एडिशन टू एसिमेट्रिकल अल्केन्स, ठीक है। नंबर 2 यहाँ पे हम अब करेंगे एडिशन टू एसिमेट्रिकल। पहले क्या था, सिमेट्रिकल था, या एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल कह लो उसको, ठीक है आप लोग, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया था कि या तो सिमेट्रिकल होंगे या क्या आपके पास होंगे, अनसिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिकल का मैकेनिज्म पूरा मैंने आपको बता दिया। अब हम अगला करेंगे अपना अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। जब बेटे अल्कीन जो हैं वो अनसिमेट्रिकल होंगे तो हमारे पास दो प्रोडक्ट जो हैं वो पॉसिबल होते हैं। पहले हमने क्या बात की कि जब अल्कीन सिमेट्रिकल होंगे तो हमारे पास एक प्रोडक्ट पॉसिबल होता है, लेकिन जब अल्कीन्स अनसिमेट्रिकल होंगे तो हमारे पास दो प्रोडक्ट जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन एग्जांपल हम लेंगे एडिशन ऑफ HBr की, वही जो हमने पहले रिएक्शन किया कि अल्कीन्स में जब HBr हमारे पास बनते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोडक्ट आ सकते हैं। लेकिन अब ये दो प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, एक दो प्रोडक्ट बनते हैं ना, या तो एक प्रोडक्ट जो है वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है और एक जो है हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इस पूरे अभी जो मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगी, जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स का मैकेनिज्म है बेटे, यहाँ पे जो एक रूल अप्लाई होता है, उस रूल को हम लोग क्या कहते हैं, मार्कोव निकोव्स रूल कहते हैं, ठीक है। और ये एप्लीकेबल है रूल जब हम एडिशन रिएक्शन पढ़ें किसके, अल्कीन्स के। ये क्या रूल है, इस रूल का मतलब क्या है बेटे, इस रूल की स्टेटमेंट है एक, क्या स्टेटमेंट है, जब कोई भी पोलर रिएजेंट किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड किया जाता है तो जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन, उस कार्बन पे जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसके साथ अटैच हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वही डबल बॉन्डेड कार्बन, जो कार्बन है इट बियर्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या चीज़ है, दिस इज नोन एज रूल, और इस रूल का नाम क्या है, मार्कोनिकोव्स रूल्स है, और ये एप्लीकेबल है किसके, जब हम एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के। ये आपकी बुक में रूल लिखा हुआ है, इस रूल की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, ये रूल आपने एज इट इज़ ही लर्न कर लेना है।
मैंने आपको क्या बता दिया कि इस रूल के मुताबिक कोई भी पोलर रिएजेंट जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में ऐड किया जाए तो नेगेटिव पार्ट जो रिएजेंट का है बेटे वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होगा। अगेन यहाँ पे भी जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स को स्टडी करेंगे तो यहाँ पे भी हम जैसे हमने बेटे ऊपर अगर आप लोग आओ, जब मैंने आपको एडिशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको दो की फॉर्मेशन बताई थी। एक यानी कि दो फर्दर स्टेप्स में ये हुआ था। एक पहले क्या हुआ था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन, दूसरी स्टेप में क्या हुआ था फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसी तरह जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स को स्टडी करेंगे तब भी हमारे पास यहाँ पे दो ही स्टेप्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे? दो ही स्टेप्स होंगे। एक स्टेप को हम लोग क्या कह लेंगे? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन, और दूसरे स्टेप को हम लोग क्या कह लेंगे? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये आपने याद रखने हैं। सेम यहाँ पे भी यही दो स्टेप्स होंगे। अब ये स्टेप्स कैसे होंगे? सबसे पहले आपके पास आएगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन। कार्बोकेशन में क्या होगा कि सी डबल बॉन्ड, सी के जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे ये अटैक करेंगे पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड के ऊपर ये अटैक करेंगे। हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो ब्रेकअप हो जाएगा उसका, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल यानी कि ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट होगा। मैं भी आपको पूरा रिएक्शन बताऊंगी। और हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाएगा कहाँ पे बेटे? डबल बॉन्ड कार्बन पे जाके अटैच होगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो है वो इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोकेशन होगी, और कार्बोकेशन के बाद हमारे पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट आएगा। बिल्कुल इसका भी दो ही स्टेप्स हैं। पहले में क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन, और दूसरे में क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगी। अब मैं आपको बेटे सारा का सारा रिएक्शन बताऊंगी, आप लोग मेरे साथ साथ इस रिएक्शन को करो। CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा? H, इधर भी H आएगा, इधर फिर C, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे भी H आएगा और यहाँ पे भी H आएगा। ठीक है, अब यहाँ से डबल बॉन्ड से आपने यहाँ पे क्या चीज़ ऐड करनी है? HBr। H के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटे? पॉजिटिव। Br के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। ये बात आपने याद रखनी है, तो कॉमन सी चीज़ है। अब एट रूम टेम्परेचर ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा। सेकेंडरी कार्बोकेशन यहाँ पे होगी। क्या होगी? जो प्रोसेस होगा दैट इज नोन एज कार्बोकेशन, और सेकेंडरी कार्बोकेशन होगी। हमने पढ़ा था ना प्राइमरी कार्बोकेशन, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेशन होगी, फॉर्मेशन होगी किसकी? कार्बोकेशन की। क्या चीज़ आपके पास बनेगी? आपके पास बनेगा HCCC, 3 C और फिर H। ठीक है, यहाँ पे भी H अटैच करोगे आप लोग, यहाँ पे भी H अटैच करोगे, इसके बाद यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच होगा, और इसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन आएगा, इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। अब ये एक Br जो है ये जाएगा इसके पास। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये जो फिनोमेना हुआ दिस इज नोन एज सेकेंडरी कार्बोकेशन। इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्बोकेशन कहते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी कार्बोकेशन यहाँ पे हुई। ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेशन क्रिएट कर दी। हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो गया। ठीक है, और विद मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेशन यहाँ पे क्रिएट होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये Br के ऊपर क्या था? नेगेटिव चार्ज था। ये आप यहाँ पे याद रखोगे, पॉजिटिव इधर जाएगा, और ये अगेन कन्वर्ट हो जाएगा बेटे। ये किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा आपका, एक हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा आप CCC। यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन, 1 2 3 1 2 3, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, ऊपर में भी तीनों हम लोग क्या प्लेस करेंगे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन आएगा, और ये Br इसके साथ आके अटैच हो गया। यहाँ पे क्या आ गया? Br, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आके अटैच हो गया। ये आपके पास एक चीज़ बन गई। अब ये क्या बना? इसको अगर देखो तो ये क्या है? 1 2, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करती हूँ तो 2 पोजीशन पे क्या चीज़ अटैच है बेटे? ब्रोमो। इसको हम क्या कहेंगे? ब्रोमो कहेंगे। 3 कार्बन है तो, और सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसको हम क्या कहेंगे? 2 ब्रोमोप्रोपेन इसका नाम है। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। क्या बन गया? 2 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है दिस इज नोन एज
मेजर प्रोडक्ट, ये क्या बन गया आपके पास, मेजर प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन करोगे ये जो आपके पास बना है दिस इज नोन एज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने जब रिएक्शन शुरू किया था तो रिएक्शन के शुरू में हमने क्या लिया था, यहाँ पे ये दिस इज नोन एज प्रोपीन, ये क्या था, प्रोपीन था। C3 थे ना, डबल बॉन्ड था तो ईन आएगा, 3 कार्बन है तो ये क्या स्ट्रक्चर था, प्रोपीन का, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन हुई थी, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने अटैक किया किसके ऊपर, C डबल बॉन्ड C के ऊपर, और अटैक किया पार्शियल पॉजिटिव एंड, ये जो पॉजिटिव एंड है HBr का, उसके ऊपर हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो चीज़ बनती है, आपके पास ब्रोमाइड आइन आ जाते हैं, ये देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किए ब्रोमाइड आइन आए, हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाके ऐड हो गया यहाँ पे आके, और आपके पास जो है सेकेंडरी कार्बोकेशन यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसके बाद यही आगे फर्दर प्रोपीन जो है फर्दर रिएक्शन भी हमें देता है, अगर आप इसी चीज़ को नीचे लेके आओ, ठीक है। 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रहे थे ना, हमने क्या कहा था कि यहाँ पे 2 स्टेप्स फिर आगे इसमें इन्वॉल्व थे, मैकेनिज्म था। यहाँ पे पहले क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन हुआ, सेकंड में क्या होगा हमारे पास, अब होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स यहाँ पे कार्बोकेशन के 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं मेजर प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे, माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट कैसे बना वो मैंने आपको बताया, अब आपके पास क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। यही फर्दर, इसी को पहले भी हमने लिया था, इसी को अब आगे फर्दर ले रही हूँ मैं। टेम्परेचर हमारा क्या होगा, रूम टेम्परेचर होगा। रूम टेम्परेचर पर यही चीज़ आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें बेटे, CH, यहाँ पे भी C, इधर क्या आ जाएगा H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे क्या आएगा C, और यहाँ पे क्या आएगा H पॉजिटिव यहाँ पे, और यहाँ पे फिर आपके पास क्या आ जाएगा H, और यहाँ पे आके अब क्या चीज़ अटैच होगी, Br, यानी कि Br जो पार्शियल नेगेटिव है, जो आपके पास आइन बने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोसेस होगा डैट इज नोन एज प्राइमरी कार्बोकेशन, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमरी कार्बोकेशन हुई, यहाँ पे क्या हुआ था, सेकेंडरी कार्बोकेशन, और यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, इट क्रिएट प्राइमरी कार्बोकेशन, ठीक है। ये हम सेकंड स्टेप पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म का, जहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन होती है किसकी, प्रोडक्ट की। ब्रोमाइड आइन जो है, ये ब्रोमाइड आइन जो है बेटे, इट अटैक द सेकेंडरी कार्बोकेशन, और जब सेकेंडरी कार्बोकेशन पे ये अटैक करता है तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट बन देगा। यही ब्रोमीन जो आइन है, अगर ये प्राइमरी कार्बोकेशन पे अटैक करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है डैट इज नोन एज माइनर प्रोडक्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनर प्रोडक्ट करते हैं। माइनर प्रोडक्ट कैसे बनता है, CH, यहाँ पे भी H बेटे वैसे ही ऊपर की तरह, यहाँ पे भी H आएगा, यहाँ पे भी H आएगा। नीचे आओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, यहाँ पे क्या आएगा H, यहाँ पे क्या आएगा Br। अब चीज़ वही है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर क्या था, Br सेकंड पोजीशन पर अटैच था, अब Br किधर चला गया, इधर चला गया, यानी कि वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। इसका क्या नाम हो गया, इस प्रोडक्ट का 1 ब्रोमोप्रोपीन। सिर्फ इसकी प्लेसमेंट, ये जगह का फ़र्क है, वो सेकंड पोजीशन पे है, ये किस पोजीशन पे अटैच है, 1 पे। इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। उसका क्या नाम था, 2 ब्रोमोप्रोपेन, और इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इज दैट क्लियर। ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, ये हमने पढ़ा एडिशन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। यहाँ पे 2 तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व थे, ये मैकेनिज्म जो रिएक्शन के थे, इसके 2 स्टेप्स थे, एक था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन, और एक क्या सेकंड स्टेप क्या था यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन में आपके पास क्या हुआ था, मैंने आपको बताया कि जो C डबल बॉन्ड C के पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे, ये अटैक करते हैं पॉजिटिव, जो पार्शियल पॉजिटिव एंड है ना HBr का, यहाँ पे ये जाके अटैक करेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है बेटे, ये ब्रेक होता है, और यहाँ से क्या चीज़ क्रिएट होती है, आपके पास ब्रोमाइन, जो ब्रोमाइड आइन है वो बनते हैं। हाइड्रोजन जो है वो ऐड होता है डबल बॉन्ड की तरफ, ठीक है, और आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेशन यहाँ पे होगी,
प्रोडक्ट आपके पास जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन, और इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। सेकंड स्टेप जो यहाँ पे इन्वॉल्व था वो कौन सा था, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, यही इधर से हम स्टार्ट लेंगे, प्रोपीन से। एट रूम टेम्परेचर हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेशन होगी, यानी कि जो माइनर प्रोडक्ट बनता है ना बेटे, ये कैसे बनता है, इट इज़ फॉर्म बाय द अटैक ऑन प्राइमरी कार्बोकेशन। जब प्राइमरी कार्बोकेशन पे ब्रोमीन या ब्रोमाइड आयन अटैक करते हैं ना, जब प्राइमरी कार्बोकेशन पे, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। और जब ब्रोमाइड आयन अटैक करते हैं सेकेंडरी कार्बोकेशन पे, तो तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजर प्रोडक्ट करते हैं। ये डिफरेंस आपने याद रखने हैं। इस केस में जब ब्रोमाइड आयन प्राइमरी कार्बोकेशन पे अटैक करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइनर प्रोडक्ट कहते हैं। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे बेटे एक डिफरेंस भी हमने कर लिया कि ये जो मेजर प्रोडक्ट है और जो माइनर प्रोडक्ट है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने उसमें यही बताना है कि जब आपका बेटे ये जो अभी मैंने बताया कि ब्रोमाइड आयन जो है, जब ये आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेशन पे अटैक करता है तो मेजर प्रोडक्ट बनता है, और जब ब्रोमाइड आयन जो है वो प्राइमरी कार्बोकेशन पे अटैक करेगा तो हमारे पास माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, ये आपके पेपर में आ सकता है। तो बेटे सेकेंडरी कार्बोकेशन जो है ये मोर स्टेबल है टू मोर अल्काइन ग्रुप्स देन प्राइमरी कार्बोकेशन। तो इस केस में जो 2 ब्रोमोप्रोपेन हमारे पास बना, ये मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेशन ज़्यादा स्टेबल होती है। इज डेट क्लियर? तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया, हमने अपने नेक्स्ट जो रिएक्शन था डैट इज़ नोन एज हाइड्रोहेलोजिनेशन वो कंप्लीट किए। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम के तमाम रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट करके दिखाए। इन रिएक्शंस को अच्छी तरह से आपने करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हाइड्रोजिनेशन को जो है वो स्टडी करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।